Hello everyone. Today I am going to start chapter number 20, the Union Government, the Judiciary, page number 230. What is government? Government is a form or is a system which rule in our country properly. And the government have three types or three level: the union government, the state government, and the local self government. But this government having three organs. First one is legislature, second one executive, and third one judiciary. In chapter 18 we read about legislature, in chapter 19 we read about executive, and now come on to the chapter number 20. It is about the Indian judiciary system. The Indian judiciary system is also known as unified system or integrated judiciary system, or it is also an independent judiciary system. Why our judiciary system is called independent or unified or integrated? All these points, all these are we will read in this chapter. So let's start. In the previous two chapters, you have studied about two major organs of the union government, and the organs are the legislature and the executive, and the third organ is judiciary. You have seen that the legislature make laws, whereas it is the responsibility of the executive to enforce them. It means legislature make laws or introduce law in the parliament. Executive execute the law or to make the format or make the law in a appropriate form or to enforce them. In this chapter we shall study about the third organ of the government, that is judiciary. And judiciary played an important role to make any laws to act. First, a memorandum or a simple paper became a bill, and the bill became law, and the law became act. And what is the procedure? ये सारा प्रोसीजर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले दो चैप्टर में. इस चैप्टर में हम जुडिशरी के वर्क को पढ़ेंगे, उसके पावर एंड फंक्शन को पढ़ेंगे, कैसे जुडिशरी आगे अपना रोल प्ले करती है. पहले एक सिंपल पेपर लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करता है बिल के फॉर्म में. बिल मतलब होता है एक फॉर्मेट और एक मेमोरेंडम और एक एन ऑफिशियल पेपर. उस पेपर को एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स करता है, तब वो जाकर लॉ बनता है. एंड देन जब जुडिशरी इसको फाइनलाइज कर देता है प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, ये फाइनली एक्ट बन जाता है. नेक्स्ट, कम ऑन टू द पॉइंट. In a federal form of government, what is the meaning of federal? Where the government distribute their distribute their power or to share their power. Where government share their power to the other constituencies or the other government. What is it? What is constituencies of the other government? When central government share their power to the state government, and state government share their power to the local self government. And why the government share their power? Because it is impossible to rule whole the country by a single central government or by the union government. Union government के अकेले पूरे कंट्री पे रूल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो अपने पावर को शेयर कर देते हैं. कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल इसको लेते हैं. एक स्कूल से, पूरे स्कूल है, पूरे स्कूल को देख लेना एक प्रिंसिपल के हाथ में नहीं हो सकता है. तो जो डिफरेंट क्लासेस होते हैं, उन डिफरेंट क्लासेस के लिए एक एक टीचर अलॉट कर दिया होता है. तो टीचर जो होते हैं वो जब तक वो क्लास में रहेंगे तब तक उस क्लास को देखते हैं, लेकिन जब वो क्लास से निकल जाते हैं तो 5 मिनट या 10 मिनट के लिए जो भी क्लास खाली होता है, या 2 मिनट के लिए, जितने भी टाइम के लिए जो क्लास विदाउट टीचर का होता है, अब वो क्लास को कौन हैंडल करेगा? तो उसके लिए टीचर क्या करते हैं, एक मॉनिटर अपॉइंट कर देते हैं. इट मीन्स हर क्लास के लिए एक टीचर अपॉइंट किया गया है. बाकी कुछ और टीचर होते हैं, जब कोई टीचर एब्सेंट होते हैं या किसी वजह से वो लीव ले लिए होते हैं, तो उनकी जगह पर उनको एडजस्टमेंट में भेजा जाता है. बट टीचर क्या करते हैं, उसी क्लास के लिए एक मॉनिटर इलेक्ट कर चुके होते हैं, ताकि जब वो क्लास में ना रहें तो मॉनिटर उस क्लास को ऑब्जर्व करे. सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस होता है हमारे कंट्री में. कंट्री बहुत बड़ा है, रूल करना पॉसिबल नहीं था, तो उसको डिफरेंट स्टेट में डिवाइड कर दिया गया. एंड डिफरेंट स्टेट के लिए CM एंड गवर्नर, जैसे सेंट्रल के लिए PM एंड प्रेसिडेंट. अब ये
सीएम एंड गवर्नर स्टेट को रूल करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जो करते हैं वो ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक समिति होता है, ब्लॉक समिति जो होते हैं वो छोटे छोटे विलेज में, विलेज के लिए सरपंच होते हैं। तो इस तरह से रूल चलता रहता है और गवर्नमेंट रूल करते रहते हैं। सो कम ऑन टू द नेक्स्ट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल? फेडरल मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर। इट इज एसेंशियल टू हैव द जुडिशरी विच नॉट ओनली रिजॉल्व डिस्प्यूट। कहता है जुडिशरी का काम सिर्फ रिजॉल्व डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना नहीं होता है, या फिर अगर किसी में कन्फ्लिक्ट हो गया है, दो कम्युनिटीज़ या दो पार्टीज़ या कुछ लोगों के बीच में झड़प हो गई या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सिर्फ उनको सॉल्व करना जुडिशरी का काम नहीं होता है, बल्कि जुडिशरी का काम या फिर जज कोर्ट का काम सिर्फ केसेस डिस्प्यूट सॉल्व करना नहीं होता है, बल्कि कानून बनाना भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। कम ऑन टू द नेक्स्ट। But is the final interpreter of the Constitution. Whenever a dispute arises regarding property, violation of our rights, abuse of power, violence, exploitation, or any other issue related to our day-to-day life, the matter can be taken to a court of law to seek justice. Seek means demand. जो हम लोग seek redressal पढ़ चुके थे, ये क्लास 7 में पढ़े होंगे, एडवर्टीजमेंट एंड डेमोक्रेसी में पढ़े होंगे कि किसी तरह से अगर किसी कंज्यूमर को चीट किया जाता है तो वो सीक रेडर्सल का यूज़ करता है। किस चीज़, कहाँ पे? कंज्यूमर कोर्ट में या कंज्यूमर फॉरम में। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी अगर किसी के राइट को वायलेट किया जाता है या फिर वायलेंस होता है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करना। एब्यूज़ ऑफ पावर, को अपना पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है। वायलेशन ऑफ आवर राइट, को हमारे राइट को वायलेट कर रहा है या फिर हमें राइट को यूज़ करने नहीं दे रहा है। देन फॉर ऑल दिस वे वी हैव टू गो टू द कोर्ट फॉर डिमांडिंग जस्टिस। द कोर्ट गिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी। जो डिज़र्व करता है उसको कोर्ट जस्टिस दिलाता है, न्याय दिलाता है। Therefore, a system of court under an independent judiciary is the foundation of our democracy. Why our judiciary is called independent? यहाँ पे एक independent वर्ड जोड़ा गया है क्योंकि जुडिशरी किसी के अंडर में काम नहीं करता है। जुडिशरी के काम को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। क्यों? सारे जगह से सब कुछ काम होने के बाद वो जाता है जुडिशरी के पास, तो फिर जुडिशरी को कोई कैसे चैलेंज कर सकता है? आपको जब ट्रस्ट नहीं था तो आप जस्टिस के लिए कोर्ट में अपील नहीं करते या फिर जुडिशरी के पास नहीं आते। लेकिन जब सब जगह से आपने अपने फॉर्मेट को, अपने काम को कर लिया, फिर आप जुडिशरी के पास आए, इसका मतलब कि आपका सारे जगह से काम हो चुका है और अब आपका काम जुडिशरी में होगा। देन जुडिशरी जो भी फैसला लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, वो आपको मानना होगा। कम ऑन टू द नेक्स्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। जस्टिस तभी पॉसिबल है जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो या फिर इसको रोकने वाला कोई ना हो। जब किसी भी तरह से जुडिशरी को कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है या फिर जब जुडिशरी को कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, तभी जाकर जस्टिस लोग अवेल कर पाएंगे या फिर लोगों को न्याय मिल पाएगा। इम्पार्शियल एंड अनबैस्ड। इम्पार्शियल, किसी भी तरह का पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए किसी दो ग्रुप को लेकर, रिच एंड पुअर को लेकर या फिर अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर। अनबायस्ड, किसी तरह का कोई इलीगल डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये जब नहीं होगा, ऑब्वियस बात है लोगों को जस्टिस मिलेगा। द जुडिशरी नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन बट ऑल्सो रिजॉल्व वेरियस डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द सिविल केसेस, criminal cases and constitutional matter without any pressure from the executive or the legislature. It means जुडिशरी के ऊपर किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का प्रेशर नहीं होता है। बट एग्जीक्यूटिव अगर कोई डिसीजन ले या लेजिस्लेचर अगर कोई डिसीजन लेता है तो जुडिशरी इसको चैलेंज कर सकता है, बट जुडिशरी को कोई चैलेंज नहीं करेगा। क्यों? लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के बाद जुडिशरी। तो जब फाइनली आपने जुडिशरी के पास भेज दिया तो जुडिशरी को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल टू चैलेंज द जुडिशरी। And the next one is civil cases, normal cases, criminal cases. Criminal cases, it means related to bribe or to robbery, to cheat or murder or to attempt to murder. ये सारा criminal case में. And what is the constitutional matter? One is civil case, second one is criminal case, and constitutional matter is when your right is violated by someone or violation is there or exploitation is there. It is come to the
Exploitative, it is come to the constitutional matter. Our constitution has various provisions without which make our judiciary independent. Our constitution has various provision, हमारे constitution में various provisions हैं, बहुत सारे provision दिए हुए हैं किस चीज़ के लिए, which make our judiciary independent, जो हमारी judiciary को independent बनाता है, and keep it free from the influence of the legislature and executive. फिर से इसी लाइन को रिपीट किया है, जो कि legislature और executive के influence से उसको दूर रखता है. Influence means effect. तो किसी भी तरह से लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी पे इफेक्ट नहीं होगा. कम ऑन टू द डू यू नो. देयर आर स्पेशल प्रोविजन दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया. कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो इंडिया में जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बनाते हैं या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम है. कैसे? द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन. जज को क्वालिफिकेशन के बेसिस पर चुना जाता है, जबकि जितने भी मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं उनको किसी भी तरह से क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, वोट होता है और वो इलेक्ट होते हैं. द जजेस कैन नॉट बी रिमूव इजली. जजेस को रिमूव करना आसान नहीं होता है. देयर इज ए स्पेशल प्रोसीजर और प्रोविजन टू रिमूव देम कॉल्ड इम्पीचमेंट. व्हाट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट? यही इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है. द इम्पीचमेंट इज इफ judicial system or any judges threat or to cheat or to violate the constitution, then they remove from their post by impose impeachment. impeachment होता क्या है? अगर कोई जज वायोलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, किसी कानून को, किसी लॉ को वायोलेट करता है, तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट दायर होता है और फिर उसको उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है. द जजेस आर पेड एडिक्वेट सैलरी. जजेस को एडिक्वेट सैलरी पेड होता है. देयर सैलरी एंड अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर. उनके पूरे टेन्योर में, पूरे साल जब तक वो काम करेंगे लाइफ टाइम में, उनका कभी भी सैलरी रिड्यूस नहीं होता है या अलाउंस रिड्यूस नहीं होगा. द टेन्योर ऑफ द जजेस इज फिक्स्ड. जजेस का टेन्योर जो होता है वो फिक्स्ड होता है. सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का 65 ईयर एंड 60 ईयर फॉर हाई कोर्ट. Now type of cases. Type of cases. There are mainly two types of cases which are brought before a court. They are civil cases and criminal cases. अभी यहाँ पे constitutional cases को नहीं लिया है. क्यों? क्योंकि constitutional केस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द constitutional मैटर है, इसलिए, या फिर constitutional मैटर को इन्वॉल्व नहीं किया है. सीधा सिविल केस एंड क्रिमिनल केस है. द सिविल केसेस रिलेट टू डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज. इसको याद रखेंगे. सिविल केस में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर, परचेज ऑफ गुड्स, etc. दे ऑल्सो इंक्लूड द इन्फ्रिंगमेंट और वायोलेशन ऑफ राइट. इन्फ्रिंगमेंट और लिखा है, इट मीन्स वायोलेशन. दिस टू वर्ड आर सेम. ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. देयर आर सिविल लॉज टू सेटल्ड एंड डिसाइड सिविल केसेस. There are civil laws to settle and decide civil cases. सिविल केस को डिसाइड करने के लिए सिविल कोर्ट होते हैं या सिविल लॉ होता है. द क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व ऑफेंसेस लाइक रॉबरीज, मर्डर, चीटिंग, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, बीटिंग, वायलेंस, किडनैपिंग, etc. टैक्स इवेजन इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस. टैक्स इवेजन भी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब टैक्स का चोरी करना, टैक्स बचा लेना किसी तरह से. इट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल केस. criminal offense. Usually the criminal cases begin with the logging of an FIR, first information report. It means अगर criminal case है तो ये criminal case बिना FIR का logging नहीं हो सकता है, या फिर इसको आप किसी तरह से अपील नहीं कर सकते हैं इस केस के लिए. After investigation by the police, the case is filed in the court. इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही केस को कोर्ट में फाइल किया जा सकता है. इन केस द क्राइम इज प्रूव्ड. अगर क्राइम प्रूव हो गया, द अक्यूज्ड कैन बी इधर सेंट टू जेल और फाइंड, और इन सम केसेस बोथ फाइंड एंड जेल्ड. केस अगर प्रूफ हो जाता है या फिर अगर क्राइम प्रूव हो जाता है, तब क्या होता है, जो कल्प्रिट होता है, जो दोषी होता है, उसको या तो जेल होता है या फिर उनको फाइन भरना होता है, या फिर कुछ केसेस में दोनों, जेल और फाइन. नेक्स्ट इज डू यू नो. An FIR is logged with police about a criminal offense.
According to law, whenever a person informs the police about an offence, it is compulsory for the police to register an FIR. अगर FIR लॉक करना हुआ तो किसी भी कॉमन पीपल के लिए, किसी के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी हो, उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन पुलिस को FIR लॉक करना होगा. द नोटेबल पॉइंट हेयर दैट इज एनी वन हु नोज अबाउट द ऑफेंस कैन फाइल एन FIR. जब तक आप किसी केस के बारे में पूरी तरह से आपके पास जानकारी ना हो या फिर प्रूफ ना हो, आप FIR फाइल नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, देन यू मे फाइल FIR और लॉगिंग FIR. एंड नॉट नेसेसरली द विक्टिम ऑफ द क्राइम. फिर से, द नोटेबल पॉइंट हेयर इज दैट एनी वन हु नोज अबाउट द ऑफेंस कैन फाइल एन FIR एंड नॉट नेसेसरली द विक्टिम ऑफ द क्राइम. ज़रूरी नहीं है कि वो क्राइम का विक्टिम हो, मतलब उसके ऊपर क्राइम हुआ हो या उसके साथ क्राइम हुआ हो या वो पीड़ित हो या फिर उसके वही किसी तरह से उस क्राइम से रिलेट हो, या फिर हो सकता है उसके घर में चोरी ना हुआ हो, लेकिन अगर वो चोरी होते देख लिया है, देन ही फाइल एन FIR टू द पुलिस स्टेशन. इट मीन्स अगर आप चोरी होते देख लिए हैं, मर्डर होते देख लिए हैं, फिर किडनैपिंग, रॉबरी, ये सब होते अगर आप देख चुके हैं, तो आपके एविडेंस पे पुलिस FIR लॉक कर सकती है. ज़रूरी नहीं है कि आप विक्टिम हो. कम ऑन टू द नेक्स्ट. सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. वाई आवर जुडिशियल सिस्टम इज नोन एज इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड. यूनिफाइड इट इज़ unified, common, and integrated it is unite. How it is unite? Because judicial system work with legislature and executive. judicial system जो है वो legislature and executive के साथ मिलकर काम करता है जब लॉ पास करना होता है तब. लेकिन अगर कोई केस फाइल करना होता है, अगर कोई केस सॉल्व करना होता है, देन इट वर्क विथ ऑल द कोर्ट. सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल होता है, देन वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में. और उससे पहले अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो उससे पहले वो पुलिस स्टेशन में FIR लॉग होगा. उसके बाद द यूनिक फीचर्स ऑफ आवर फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप इज सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप. क्या होता है फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप? ये आंसर आप जो वीडियो देखेंगे उसके बाद कमेंट में आपको आंसर पोस्ट करना होगा. नेक्स्ट वन इज it is a single unified and integrated judicial system for the whole country. It has got power to supervise and control the working of entire judicial system in India. It means judicial system or judiciary or a federal democratic setup or the single unified and integrated judicial system have the power to supervise and control the working of entire judicial system in India. It ensures justice to all. ये सभी को जस्टिस इंश्योर कराता है. जस्टिस इंश्योर कराने का मतलब है जस्टिस लोगों को मिलता है. द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी फॉलोड बाय द हाई कोर्ट एंड द स्टेट इन द स्टेट एंड देन द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. कम ऑन टू द नेक्स्ट. कहता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे एपेक्स बॉडी होता है. इट मीन्स इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम फॉलोड बाय, इट मीन्स फॉलो मतलब हाई कोर्ट उसके नीचे एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. द लोएस्ट कोर्ट इन द जुडिशियल हायरार्कियल ऑर्डर इज द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. जो लोअर कोर्ट होता है इट इज ऑल्सो नोन एज कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, जहाँ मैजिस्ट्रेट बैठते हैं. तो इसी मैजिस्ट्रेट को हम जज भी कहते हैं. लोअर कोर्ट में बैठते हैं तो मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं, हायर कोर्ट में बैठेंगे तो वो जज कहलाएंगे. द लोअर कोर्ट आर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज बाई द हाई कोर्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट को कौन कंट्रोल करता है? हाई कोर्ट. एंड हाई कोर्ट को कौन कंट्रोल करेगा? सुप्रीम कोर्ट. A judgment given by the lower court can be challenged in the high court. लोअर कोर्ट में अगर कोई जजमेंट हुआ है, कोई फैसला लिया गया है तो उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. मतलब अगर फैसला आपके फेवर में नहीं लिया गया है तो आप उस फैसले को, उस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. सिमिलरली एन इंडिविजुअल कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट. इसी तरह से जैसे आपको लोअर कोर्ट का डिसीजन समझ में नहीं आया या फिर आप पसंद नहीं किए कि आपका फेवर में नहीं हुआ,
तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। हाई कोर्ट भी अगर वही सेम डिसीजन ले लेता है तो फिर आप हाई कोर्ट को भी चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। बट इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन और वर्थ मेंशनिंग दैट सुप्रीम कोर्ट में अगर डिसीजन ले लिया गया तो फिर आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। The Constitution of India says that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जितना भी डिसीजन होता है shall be binding on all courts, पूरे तरह से सारे कोर्ट को ये बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है। किसी भी तरह से कोई भी डिसीजन इलीगल नहीं हो सकता है या फिर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन बायस नहीं होगा। एक बहुत ईजी फॉर्मेट में चार्ट दिया है, इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहला इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हाईएस्ट बॉडी अपेक्स बॉडी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये पूरे कंट्री के लिए, ये डिफरेंट स्टेट में, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। अब इसी कोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट के लिए कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल कोर्ट के लिए सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज। ठीक है, इट मीन्स सिविल कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट जज एंड क्रिमिनल कोर्ट के लिए सेशन जज। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ दिस सबऑर्डिनेट सिविल जज फर्स्ट क्लास। सिविल जज फर्स्ट क्लास होते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। नेक्स्ट इज मुंसिफदार होते हैं या फिर कोर्ट ऑफ सब जज सेकंड क्लास के होते हैं, बट यहाँ पे उसके बाद फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए, टाउन के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए। एंड द नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, पहले फर्स्ट क्लास, देन सेकंड क्लास एंड देन कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, स्पेशल जज मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। यहाँ तक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आया, यहाँ पे स्पेशल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आया, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आ गया। तो ये है सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट्स या फिर उसके कंसेक्यूटिव बॉडीज़ या फिर उसके लिए काम करने वाले अलग हेल्पिंग हैंड। नेक्स्ट वन इस, इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।